My dear students, we are discussing rectilinear motion, and in the previous lecture we have seen the motion of any object which is thrown vertically upwards from the ground. Now I have told you that when a stone or any object is thrown upwards, vertically upwards, then its motion is controlled by the gravitational force exerted by the earth, and it has a constant acceleration which is equal to the acceleration due to gravity, and acceleration due to gravity is always directed downwards. Okay, then we had seen the maximum height that it can attain and various other things we had already discussed. Now today we are going to solve one question. The question is, we have to find out the time and the height at which an object which is thrown vertically upwards from the ground reaches a velocity half of the initial velocity u. It means what? Now suppose this is the ground. From here we are throwing a stone upwards with initial velocity u. It will go here, it will reach the maximum height h max or h. Then we have to find out at a point where the velocity will be half of this. Now you know that as the stone moves upwards, its velocity will go on decreasing. So at some point it will become half of it. Okay, u by 2. So the final velocity v will be equal to u by 2. Now after reaching here, it will again come back. I will show a different line for that. It will come down like this along the same straight line, of course. एक इसी लाइन से वापस आएगा, लेकिन समझाने के लिए मैं बाजू में इसको शो करता हूँ. ये ऐसा नीचे आ जाएगा स्ट्रेट लाइन में. अब जब ये ऐसा आएगा तो फिर क्या हो जाएगा, फिर वेलोसिटी बढ़ती, यहाँ पे तो वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, फिर जीरो से फिर नीचे आएगा तो वापस बढ़ती चली जाएगी. मैंने आपको कल ही बताया था कि जब वो सेम लेवल पे रहेंगे तब वेलोसिटी भी सेम ही रहेगी. ओके, सो व्हेन दे विल बी एट द सेम लेवल, देयर वेलोसिटी विल बी सेम. So if the velocity is half at this point, again here the velocity is going to be half. Clear? So we want to find out the time and also height at which the velocity will be half of the initial velocity. Now there will be two cases as I have shown you, while going upwards and while coming down. So first case में क्या होगा? Say in the first case, initial velocity u will be plus u because it is thrown upwards. Acceleration due to gravity a will be equal to what? Minus g. It will always be directed downwards. Clear? And v will be equal to u by 2 plus u by 2 because it is anyways directed upwards. Now we know the equations of motion. V is equal to u plus at. Now we'll put the values. V is equal to what? U by 2, half of the initial. U is u plus a is what? Minus g into t. Clear? So therefore u by 2, या फिर gt को इस तरफ लेके आइए, gt is equal to u minus u by 2. So this is equal to u by 2. Clear? So therefore t is equal to u upon 2g. So at this time, that is at a time when t is equal to u upon 2g, the velocity of the particle will be half of the initial velocity of the particle. स्टार्टिंग में जितनी वेलोसिटी थी उसका हाफ कितने टाइम बाद रीच करेगा. ये तो हो गया ऊपर जाते समय. भाई वो ऊपर जाएगा मैक्सिमम पॉइंट पे, वापस भी तो आएगा. तो जब वापस आएगा तब भी एक बार इसका वेलोसिटी विल बी हाफ ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी. हम लोग वो फाइंड आउट करना चाहते हैं. नाउ उस केस के लिए क्या हो जाएगा? v will be in this case v will be equal to what? अब वेलोसिटी कैसा है? नीचे की तरफ है, डायरेक्टेड. क्लियर? सो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा फिर? माइनस u by 2 हो जाएगा. इनिशियल वेलोसिटी ऑफ कोर्स यहाँ से फेंका गया है तो इट विल बी प्लस u ओनली. एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू माइनस g. क्लियर? सो नाउ लेट अस अप्लाई द इक्वेशन ऑफ मोशन. v is equal to u plus at. Now v is equal to u plus at. v का वैल्यू कितना है? माइनस ऑफ u by 2 है. दिस इज इक्वल टू u तो प्लस u ही है,
acceleration is equal to what? Minus g into t. Clear? So therefore इसको t1 कर देते हैं, तो इसको t2 कर देंगे. So therefore अब क्या करते हैं, इसको इस तरफ लेके चले जाइए. So this will be equal to g into t2. This is equal to u plus u by 2. Okay. So therefore u plus u by 2 will be equal to what? 3 by 2 of u. That u हो गया ना? Okay, clear. Therefore t2 will be equal to what? 3u by 2g. Okay. So this will be equal to 3u by 2g. So दो टाइम velocity will be equal to half of the initial velocity. दो बार velocity जो initial velocity है उसके आधी वैल्यू के बराबर होगा. एक तो ऊपर जाते समय कितने टाइम बाद? u upon 2g. उसके बाद में और एक बार कितने टाइम बाद? 3u upon 2g. क्लियर? तो इस तरह से दो बार इसका वेलोसिटी हाफ होगा इनिशियल वेलोसिटी से. बट अब हम लोगों को ये फाइंड आउट करना है कि भाई किस हाइट पे ये होगा. नाउ सपोज इट हैपेंस एट हाइट h. क्लियर? सो हमारे पास तो इक्वेशन ऑफ मोशन अवेलेबल है, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर. नाउ इस केस के लिए u जो है वो क्या होगा? प्लस u होगा, ऊपर के डायरेक्शन में फेंका गया है. क्लियर? और जो s होगा वो क्या होगा? सपोज एट हाइट h ये हो रहा है. क्लियर? नाउ ये जो हाइट है दिस कैन बी इक्वल टू व्हाट? दिस कैन बी पॉजिटिव. ओके, ये अब ऊपर क्या? हाँ, इन एनी केस इट इज गोइंग टू बी पॉजिटिव ओनली, क्योंकि ये तो ऊपर ही है. क्लियर? एंड a विल बी इक्वल टू व्हाट? a विल बी इक्वल टू माइनस g. सो लेट अस पुट द वैल्यूज. Therefore h is equal to u into t. t क्या हो गया? फर्स्ट केस के लिए अगर हम लोग अप्लाई करेंगे so t will be equal to what? t will be equal to u upon 2g. Clear? Then या तो एक काम करेंगे, ये इक्वेशन अप्लाई करने के बजाय व्हाट वी विल डू इज वी विल यूज द थर्ड इक्वेशन. तो थर्ड इक्वेशन में क्या हो जाएगा? v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as. क्लियर? सो देयरफॉर अब वेलोसिटी कितना है? अगर ऊपर जाते समय का देखेंगे तो प्लस u बाय 2 होगा, नीचे आते समय देखेंगे तो माइनस u बाय 2 होगा. क्लियर? इनिशियल वेलोसिटी क्या है? वो तो प्लस u ही है. Clear? So therefore let us try to find out v square. v कितना है? प्लस और माइनस u by 2 इसका स्क्वायर इज इक्वल टू u का स्क्वायर, u तो पॉजिटिव ही है, प्लस 2 टाइम्स ऑफ a का वैल्यू कितना है? माइनस g. क्लियर? एंड s इज इक्वल टू व्हाट? दैट हाइट एट विच दिस इज हैपनिंग. ओके, हाइट तो पॉजिटिव है इन एनी केस. ये तो ये ओरिजिन को हम लोग मानते हैं, इसका मतलब इन बोथ द केसेस दिस इज गोइंग टू बी पॉजिटिव ओनली. सो देयरफॉर ये क्या हो जाएगा? u स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2g इंटू h. ओके, इसको इस तरफ लेके आइए. सो 2gh विल बी इक्वल टू u स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाय 4. सो 1/4 ऑफ u स्क्वायर, u स्क्वायर से 1/4 ऑफ u स्क्वायर गएगा तो कितना बाकी रहेगा? 3/4 ऑफ u स्क्वायर. क्लियर? सो देयरफॉर h will be equal to what? h will be equal to 3u square upon 4 into g. इसका मतलब when h is equal to, यहाँ पे लिखता हूँ, h is equal to 3/4 of u square by g, तब the velocity will be half of the initial velocity. Now जैसा कि मैंने बताया है ऑलरेडी कि भाई सेम लेवल पे होगा तो सेम वेलोसिटी होगा. मतलब 3/4 ऑफ u स्क्वायर बाय 2g दो बार ऊपर जाते समय और फिर वापस वहां पे जब वापस आएगा तब दोनों टाइम पे the velocity will be half of the initial velocity. Clear? So this is the height at which the velocity of this particle will be
half of the initial velocity, that is 3/4 of u square by g is height. Clear? So this is our motion of the object when it is thrown vertically upwards from the ground. Now दूसरा एक केस हम लोग डिस्कस करेंगे, इसी से रिलेटेड ही है, जस्ट हम लोगों को ये देखना है कि भाई अप्लाई कैसे करें. नाउ यू नो दैट फ्री फॉल मतलब क्या है. व्हाट इज फ्री फॉल? फ्री फॉल मतलब क्या है? कोई चीज को ड्रॉप कर देंगे. सपोज ये हाइट है, यहां से इस चीज को ड्रॉप कर देंगे, ये यहाँ पे ग्राउंड तक आ जाएगा. क्लियर? सो ये जो लेवल है जहां से हमने ड्रॉप किया है, इसको हम लोग ओरिजिन की तरह ट्रीट करेंगे. क्लियर? दिस विल बी ट्रीटेड एज एन ओरिजिन. नाउ यहां से हम लोग ड्रॉप कर रहे हैं, सो व्हाट इज द वैल्यू? वैल्यू ऑफ इनिशियल वेलोसिटी इज व्हाट? 0. इनिशियल वेलोसिटी विल बी इक्वल टू 0. एक्सीलरेशन विल बी -g ओनली, यहां से नीचे. अब जो भी इसका डिस्प्लेसमेंट होगा दैट विल बी व्हाट? ये अगर ओरिजिन है तो इसके ऊपर पॉजिटिव है, इसके नीचे नेगेटिव है. क्लियर? सो यहां से जो भी डिस्प्लेसमेंट होगा दैट विल बी ट्रीटेड एज नेगेटिव. क्लियर? सो यहां से जब भी हम लोग छोड़ेंगे, इट्स मोशन will be accelerated motion and the acceleration will be equal to what? Acceleration due to gravity. Now this is our free fall. Free fall मतलब क्या है? When some object is released, okay, just छोड़ देंगे तो starting initial velocity will be equal to what? 0. जैसा जैसा नीचे आएगा उसका velocity increase होता चला जाएगा, और just गिरने से पहले जो उसका velocity होगा that is called as the terminal velocity. नाउ हम लोगों को ये फाइंड आउट करना है कि व्हाट इज द टाइम टेकन बाय दिस टू टच द ग्राउंड एंड व्हाट इज द वेलोसिटी व्हेन इट टचेस द ग्राउंड. हम लोगों को क्या फाइंड आउट करना है? टाइम रिक्वायर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, बाय द ऑब्जेक्ट टू रीच द ग्राउंड एंड द वेलोसिटी of the object when it reaches the ground. Okay, when it reaches the ground. When it reaches the ground जब मैं बोलता हूँ तो just before it touches the ground. Clear? अब जब वो ground को पहुँच जाएगा तब तो उसका velocity will be 0. So now what we will do is, we know that v is equal to u plus at. क्लियर? या फिर एक काम करते हैं, सपोज हम लोग इसको हाइट h से ड्रॉप कर रहे हैं. ओके, हाइट h से ड्रॉप कर रहे हैं, इसका मतलब इसका जो डिस्प्लेसमेंट है दिस विल बी इक्वल टू व्हाट? डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू -h, क्योंकि यहां से ड्रॉप कर रहे हैं, ये ओरिजिन है, उसके नीचे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है. क्लियर? u is equal to what? 0 and a will be equal to what? -g. so क्या करते हैं? v स्क्वायर फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए, ओके ठीक है, v s is equal to ut plus half of at square. let us use this one क्योंकि हम लोगों को टाइम फाइंड आउट करना है. now s is equal to what? it will be equal to -h. क्लियर? यहाँ से ग्राउंड तक आ गया है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी इज 0, so 0 into t is 0 plus half of a is -g into t square. Clear? so therefore -h is equal to, this is 0 minus gt square upon 2, this one. so therefore अब दोनों तरफ नेगेटिव है तो प्लस हो जाएगा. therefore t square is equal to 2h upon g. Clear? so t is equal to under root of 2h upon g is the time required by that object to touch the ground. okay, so इतना टाइम लगेगा 2h divided by g for this object to reach the ground from height h when it is under free fall. free fall मतलब just छोड़ देंगे, so initial velocity of this object will be equal to 0. okay, so ये हो गया टाइम जो कि लगेगा उसको टू टच द ग्राउंड. अब हम लोग ये फाइंड आउट करेंगे कि भाई जब वो ग्राउंड को टच करेगा तब उसका वेलोसिटी क्या होगा. क्लियर? so इसके लिए हम लोग
we will use the equation v square is equal to u square plus 2as, ये भी यूज कर सकते हैं, या तो फिर v is equal to u plus at, ये भी यूज करेंगे क्योंकि हमारे पास अभी t है. ओके, कोई भी यूज कर सकते हैं. चलो लेट अस यूज दिस वन, v square is equal to u square plus 2as. Now v is the velocity that we want to find. Initial velocity we know that is equal to 0 plus 2, a is what, minus g, and s displacement is what, minus h, नीचे के डायरेक्शन में है. ओके, और ये ओरिजिन है क्योंकि यहाँ से हमने ड्रॉप कर दिया है ऑब्जेक्ट को. सो देयरफॉर v square is equal to 2g into h. So therefore v is equal to under root of 2 into g into h. So ये वो वेलोसिटी होगी जो ये ऑब्जेक्ट अटेन करेगा when it is about to touch the ground. क्लियर? जबकि हमने इसको कितने वेलोसिटी से रिलीज किया है? We have released it with velocity 0, with an initial velocity of 0. क्लियर? तो ये है फ्री फॉल. ओके, फ्री फॉल में क्या करते हैं हम लोग? जीरो वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट को जस्ट ड्रॉप कर देते हैं फ्रॉम सम हाइट. क्लियर? और उसका एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. हमने कोई वेलोसिटी नहीं दिया है, जस्ट उसको छोड़ दिया है. ओके, सो दिस इज द टाइम रिक्वायर्ड एंड दिस इज द वेलोसिटी एट विच इट विल टच द ग्राउंड. क्लियर? सो वी विल सॉल्व सम मोर प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन दिस so that your understanding of this topic becomes better and better. इसके साथ में और भी हम लोग कुछ फॉर्मूलेज डिराइव करेंगे, कुछ डिफरेंट केसेस भी देखेंगे. अब जैसा हम लोगों ने दो ही केसेस देखेंगे, ग्राउंड से हमने फेंका है या तो फिर ऊपर से छोड़ दिया है. अब ये भी केस हो सकते हैं कि हम लोग किसी बिल्डिंग पे चढ़ के कोई पत्थर फेंक देते हैं. ओके, और फिर वर्टिकली अपवर्ड्स फेंक देंगे जस्ट बिल्डिंग के एज से, तो ऊपर जाएगा, ऊपर से फिर नीचे ग्राउंड पे आएगा, तब क्या होगा? दिस थिंग्स ऑल्सो वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर. ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर व्यूइंग दिस वीडियो.